جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم جتنے بھی ایکشنز پرفارم کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ یا آبجیکٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیکسٹ ڈمی ٹیکسٹ لانے کے لیے میرے پاس جو کمانڈ ہے وہ یہ ہے = رینڈ اور بریکٹ اور پھر اس کے بعد جتنے پیراگراف آپ کو چاہیے اور پھر بریکٹ کلوز. تو یہ آپ کے پاس آ گیا. ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ سلیکشن کی بیس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ٹیکسٹ سلیکٹ کر لیا. اس کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کنٹرول اور شفٹ اور ایرو کی اور پلس کنٹرول شفٹ اور ایرو کی. تو یہ میں نے کنٹرول شفٹ اور ایرو کی اپ ایرو کی پریس کیا تو میرا سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے بعد ہم نے یہ ساری یہاں پہ دیکھے کہ آپ نے ٹیکسٹ کا سائز کیسے انکریز کرنا ہے, کیسے ڈیکریز کرنا ہے, آپ نے بولڈ کیسے کرنا ہے, اٹیلک کیسے کرنا ہے. آپ نے فرض کریں کہ یہاں پہ لکھا 10th تو آپ نے اس کو سپر اسکرپٹ کیسے بنانا ہے, سمپل اسپیس پریس کریں تو یہ 10th اس طرح سے بن جائے گا. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں کہ اس کو آپ نے سب اسکرپٹ بنانا ہے یعنی بیس بنانا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کنٹرول اور = کا سائن پریس کریں گے تو بیس بن جائے گی, کنٹرول شفٹ اور = کا سائن پریس کریں گے تو پاور بن جائے گی. یہ چیز ہو گئی. اچھا اس کے بعد جی آپ نے پڑھا ہے یہ چینج کیس. چینج کیس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں وہ سینٹینس کیس میں ہوگا یا اپر کیس میں ہوگا یا لوور کیس میں ہوگا. تو ہم نے اس کے لیے جو شارٹ کٹ پڑھا تھا وہ تھا شفٹ F3. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہ شفٹ F3 سے آپ ایک دفعہ پریس کریں گے تو سینٹینس کیس بن جائے گا. سینٹینس کیس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر جو سینٹینس ہوتا ہے جہاں پہ فل سٹاپ ہوتا ہے یہ ایک پورا سینٹینس ہے. اب اس سینٹینس کا جو سب سے پہلا کریکٹر ہوگا, جیسے آن ہے, آن کا او ہے, یہ بڑا ہوگا, باقی سارے چھوٹے ہوں گے. اچھا اس کے بعد یہ آپ کے پاس ہوتا ہے اپر کیس. اپر کیس سے مراد یہ ہے کہ سارے جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے بڑے ہوں گے. تو شفٹ F3 آپ دوسری دفعہ پریس کریں تو سارے بڑے ہو جائیں گے, شفٹ F3 آپ پریس کریں تو سارے چھوٹے ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس کی ریویژن ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا اب ہے آپ کے پاس یہ دو کلر باکسز جو ہیں. یہ ہے جی کہ آپ اگر ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, پہلا جو ہے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہائی لائٹ کر دیں. آپ یہاں سے کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں, جیسے آپ نارمل کرتے ہیں, آپ نے ہائی لائٹر رکھا ہوتا ہے, آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ نے ہائی لائٹر رکھا ہوتا ہے. جو کوئی بک کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہائی لائٹر ہے. اب دیکھیں یہ صرف ٹیکسٹ کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سپیس ہے اس کو نہیں کر رہا. جہاں ٹیکسٹ ختم ہوتا ہے اس کو کر دے گا. جیسے ابھی فرض کریں یہ آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے, میں اس کو کرنا چاہتا ہوں تو اس کو بھی ہائی لائٹ کروں تو میں اس کو ریڈ کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح سے کر کے آپ ٹیکسٹ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلا جو ٹیب ہے یا اگلا جو آپ کے پاس مینیو کے اندر جو آئٹم ہے وہ ہے جی آپ کے پاس یہ آپ دیکھ لیں, یہ آپ ٹیکسٹ کے کلر چینج کر سکتے ہیں. اب یہ ٹیکسٹ کے کلر چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب مزید آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ڈیفالٹ فونٹ ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کر کے, اور سوری ڈیفالٹ فونٹ کلر ہے اس کو چینج کر کے آپ نے اب یہ کلر ریکمینڈ کر دیا. آپ نے کہا کہ اب اس کے بعد یہی کلر چلے گا. اب اگر فرض کریں آپ دوبارہ جا کے کلر چینج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو پیراگراف ہوگا وہ اس کلر میں لکھے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ کے پاس جو ٹیکسٹ آئے گا وہ اس کلر کا آئے گا. بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے آپ اس کا ٹیکسٹ کا کلر چینج کرتے ہیں. یہ ہمارا یہ جو دو ہیں یہ بہت ایزی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, یہاں سے آپ مور کلر بھی یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کے کام کے کلر ہیں نہیں. ان کو ایک گرافک ڈیزائنر اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. تو آپ یہیں پہ انہی کلرز میں سے کلر کی سلیکشن کریں. یہ ہائی لائٹر کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, اسٹاپ ہائی لائٹنگ اگر فرض کریں کہ آپ نے ہائی لائٹنگ ختم کرنی ہے تو نو کلر کر دیں. یہ آپ نے ہائی لائٹنگ ختم کرنی ہے تو یہ آپ نے ہائی لائٹنگ ختم کر دی. آپ نے اگر اس کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ کیا کر دیں, آٹومیٹک کلر پہ لے جائیں, اوپر کلک کریں تو یہ آٹومیٹک کلر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کلر آپ نے لگایا یہاں سے اور ختم کیسے کرنا ہے, یہ آپ نے نو کلر. ٹھیک ہے, ختم ہو گیا. آپ نے ٹیکسٹ کو کلر کیا یہاں سے اور اب آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ جائیں اور آٹومیٹک کے اوپر کلک کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے ٹیکسٹ کا کیا ہو جائے گا, آٹومیٹک کلر آ جائے گا. اب دوبارہ ذرا کیا کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں.
ये मैंने थोड़ा टेक्स्ट बड़ा किया, मैंने ये टेक्स्ट बड़ा किया, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको वापस इसकी अपनी असली हालत पे ले आता हूँ, ठीक है, नो कलर। अब जो दो चीज़ें मैंने छोड़ी हुई थी कि ये बाद में पढ़ेंगे, एक फॉर्मेट पेंटर और एक क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या है, हम इसको देखते हैं। इन दो को पढ़ने के बाद ना आपके ये दो टैब जो हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बात समझ आ गई, ये दो टैब्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है कि जो आपने इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेटिंग से मुराद आपने इसको कलर दिया, आपने इसको बोल्ड किया है, आपने इसका साइज बढ़ाया, आपने इसको अंडरलाइन किया है, जो भी किया है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वही अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाके सिलेक्ट करें, और अब देखें ये मैं दोबारा कंट्रोल Z से वापस आके दोबारा इसको अपनी असल हालत पे वापस लाता हूँ, फिर करता हूँ। आपने अगर ये वाला सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो आप करते हैं फॉर्मेट पेंटर, ये बात समझ आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा उसके बाद अगला है आपके पास क्लियर फॉर्मेटिंग, ये रह गया था, ये पढ़ना है। ये है जी कि आपने जो कुछ किया है, जो फॉर्मेटिंग किया, उस सारे को ख़त्म करके टेक्स्ट को ओरिजिनल अपनी असल हालत में वापस ले आए। ओरिजिनल से मुराद जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है उस पर ले आए। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये तो ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के ऊपर आ गया, सिर्फ कलर रह गया। अब ये कलर इसके अंदर आता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, इसको नो कलर देते, ये डिफ़ॉल्ट आ गया। दोबारा करते हैं इसको, ये क्लियर फॉर्मेटिंग पे गए, पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करें, क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाएं, सारा फ़ॉन्ट साइज बोल्ड इटैलिक सब कुछ ख़त्म हो गया है, सिर्फ ये हाईलाइट रह गया है। हाईलाइट को यहाँ पे जाके आप क्या करें, ख़त्म कर दें, तो ये क्या हो गया, क्लियर फॉर्मेटिंग। बात समझ आ गई। इस तरीके से आप जो है ना काम करते हैं इस इन दो के ज़रिए। ये है आपका जो ऊपर फॉर्मेटिंग हुई हुई है उसको नीचे अप्लाई करने के लिए या कहीं और जगह अप्लाई करने के लिए, और ये है आपने जितनी फॉर्मेटिंग की हुई है उस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा ये अगर फर्ज करें, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है जी ये आपका रिबन बॉक्स या इसको पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे करना है। ये आप किस तरीके से करेंगे, ये सारा किसको इसको कैसे हैंडल करेंगे, या इसके अंदर है क्या क्या, ये हम देखते हैं। इसके अंदर है जी आपके पास बुलेट। बुलेट से क्या मुराद होता है, एक तो होती है ना बुलेट गोली, यार एक है बुलेट आपका, कि बुलेट क्या होता है कि जी आप जिसे नॉर्मल बोलते हैं, यहाँ पे जो बुलेट है वो बुलेट से क्या मुराद है आपकी, वो बुलेट से मुराद है कि आप जो नंबर देते हैं यानी सीरीज बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, या आप स्टार देते हैं वो, ठीक है, या कोई और सिंबल लगा के आप बुलेट क्रिएट करते हैं या हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। जैसे आप स्कूल में ये काम किया करते थे, जहाँ पे आपको लिखा जाता था कि क़याद आज़म के 14 नुकात लिखें, तो पहला नुक्ता आप लिखते थे 1, दूसरा, या आप पहला नुक्ता लिखते थे अलिफ बे पे, इस तरह से करके लिखते थे। तो ये जो बुलेट बनाए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अच्छा जी, जैसे फ़र्ज़ करें हम हमारे पास कोई टेक्स्ट है, पहले हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट से हटकर अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा कोई बंदा लिखता है जी कि अच्छा पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं इनके नाम लिखे, तो मैं क्या लिखता हूँ, पंजाब, KPK, सिंध, ठीक है। अच्छा जी बलूचिस्तान,
ठीक है। अच्छा जी, GB गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा मैं साथ चलें, अगर सुबह नहीं भी है तब भी मैं लिख देता हूँ AJK। अच्छा ये मैंने लिख दिया, लेकिन अब कुछ वाज़ह नहीं है, अब कुछ वाज़ह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पाकिस्तान मैंने ऊपर लिखा ये, और मैंने यहाँ पे आके इसको क्या दे दिया, ये इनमें से कोई बुलेट दे दिया, ये मैंने बुलेट लगा दिया। बात समझ आ गई? अच्छा अब अगर फ़र्ज़ करें मैं दोबारा अगर इनका मुझे यहाँ पे सिंबल चेंज करना है, तो आप यहाँ पे सिंबल चेंज कर दें। ठीक है, ये आपने यहाँ से सिंबल चेंज कर दिया, ये सिंबल चेंज कर दिया। अब अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई कहता है कि मज़ीद जो हैं वो हमने करने हैं, ठीक है, मज़ीद सिंबल लगाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, डिफाइन न्यू बुलेट्स, इसमें जाऊँगा, मज़ीद सिंबल यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये इतने ज़्यादा सिंबल यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अगर आप कोई और देना चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर दोबारा जाते हैं यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स सिंबल्स, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये आप फर्ज करें ये सिंबल देना चाहते हैं, ये क्लिक करें, सबका सिंबल ये हो जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा ये तो हो गया सिंबल बुलेट, डिफाइन न्यू बुलेट्स। अब अगर फर्ज करें आपको कोई कहता है कि जी यहाँ पे हम जैसे हम लिखते हैं मोबाइल नंबर, फलां का मोबाइल नंबर क्या है, यानी हम नीचे अपना कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, यानी फर्ज करें कि जी कॉन्टैक्ट, तो हम जी आगे लिखते हैं व्हाट्सएप, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, हम ये चीज़ें लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि क्या सिंबल बुलेट में मौजूद है कोई ऐसी चीज़ जिससे, जैसे ये देखें, ये आपका मोबाइल आ गया, ये, तो मैं क्या करता हूँ 0315551016 ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैंने ख़त्म कर दिया, अब मैंने दूसरा बुलेट लगाना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप का, तो मैं मेरे पास लाजमी बात है इसमें इमेज नहीं होगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेट पे जाता हूँ और यहाँ से व्हाट्सएप आइकॉन, मैं इसको गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, ये कोई मैं इनमें से व्हाट्सएप का आइकॉन ले लेता हूँ, ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी के अंदर दोबारा गए, डिफाइन न्यू बुलेट्स पिक्चर्स, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया। अब इसके अंदर ऑलरेडी भी पड़ी हुई हैं, लेकिन इनको छोड़ें, ये किसी काम की नहीं है, आप इंपोर्ट पे जाके क्लिक करें, जो आपने सिस्टम से इंपोर्ट करनी है पिक्चर। तो आप गए जहाँ पे आपने रखी थी डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, तो ये डाउनलोड वाली पिक्चर है, ये इसका नाम डाउनलोड था, मैं ज़रा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए। ये ऐड, ओके, ठीक है, ओके, ये देखें, ये आपके पास व्हाट्सएप आ गया 0315551016 बात समझ आ गई? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट्स भी कर सकते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट्स में पिक्चर कर सकते हैं। अब अगर फर्ज करें हमें कहा गया है कि ईमेल एड्रेस लाएं, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ईमेल आइकॉन, सेव इमेज पे गया, राइट क्लिक किया और सेव इमेज को जो है ना वहाँ पे जाके सेव किया, ये डाउनलोड टू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पिक्चर्स इंपोर्ट, ठीक है, ये और ये और ये, अच्छा ये नहीं आया, इसको दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड था
वो था ये आपके पास आ गया। ये मैंने इसको चेंज कर दिया तो ये चेंज भी हो गए, ठीक है, दोनों चेंज हो गए हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे वापस लाता हूँ। यानी आपने, ये मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ कि बुलेट से निकलना कैसे है। यानी अगर फर्क करें बुलेट लग गया, जैसे ये फर्क करें, मैंने ये देखो, ये मैं ऑटोमेटिक एंटर प्रेस करता जाता हूँ, नीचे बुलेट लगता जाता है, ठीक है, ये खुद ब खुद बुलेट लग रहा है। अब इस बुलेट से निकलना कैसे है, यानी इससे पीछा कैसे छुड़ाना है, तो आप क्या करते हैं, जैसे अभी फर्ज करें मैंने ये 1 टाइम पे प्रेस किया तो बुलेट लग गया, 2 टाइम पे प्रेस किया यानी दूसरी दफा प्रेस किया तो बुलेट से निकल गए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये और ये, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे जाके डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ पिक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, पार्क डॉट फ्यूचर @gmail.com, ठीक है, ये मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया। तो इस तरीके से आपने इसका बुलेट बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सिंबल बुलेट, ठीक है। अब अगर फर्ज करें हमने इन्हीं का नंबर बुलेट बनाना हो, नंबर बुलेट बनाना हो, तो आप जस्ट इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, जो अगला है इसके ऊपर जाके क्या करें, क्लिक करें, तो ये आपका नंबर बुलेट बन जाएगा। जैसे फर्ज करें मुझे को कहता है कि जी इस्लाम के बुनियादी अरकान, इस्लाम बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, इस्लाम के बुनियादी उसूल जो हैं। अगर फर्ज करें मैंने ये लिखने हैं तो मैं क्या कहता हूँ जी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अच्छा और क्या है, जिहाद, ठीक है। अब अगर फर्ज करें मैंने इनका बुलेट लगाना है तो मैं यहाँ पे नंबर में आता हूँ, तो ये मैंने बुलेट दे दिया। लेकिन अगर इनको चेंज करना है, यहाँ से इनमें से कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक किया, ये रोमन में लिखना है तो आप ये रोमन में लिख दें, ये बात समझ आ गई। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपका नंबर बुलेट लगाने का तरीकाकार है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और है कि फर्ज करें आपने बुलेट के बाद बुलेट लगाना है। जैसे अभी फर्ज करें कोई आपको कहता है कि जी इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल, ये आपका लेक्चर 1 है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए ये 1, ठीक है। और अब आप चाहते हैं कि ये जो नीचे हैं ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 आए, तो इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, ये, ठीक है। तो इनको आपने कैसे करना है, यहाँ पे आप सब बुलेट अगर फर्ज करें इनका बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये 1, जैसे इन सारे पहले बुलेट्स को ख़त्म करूँगा, मैं इन बुलेट्स को यहाँ से बुलेट्स हटाता हूँ, बिल्कुल ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ये आ गया। मैं पहला एंटर, जरा नोट कीजिएगा, पहला एंटर, पहला एंटर, ठीक है। क्या लगा, ऊपर वाला बुलेट लगा 1 और 2। अब आपने क्या करना है, टैब प्रेस करना, टैब, टैब का बटन, कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन होता है, ठीक है, कैप्स लॉक के बटन से ऊपर आप टैब का बटन प्रेस करें, ये 1, ये, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको, ये, इसको मैं बैक स्पेस करके वापस लाता हूँ, और ये 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 आ गया बुलेट के अंदर बुलेट, ये डिफॉल्ट ABCDEF आएगा।
लेकिन अगर आपने इसको 1.1 और 1.2 में करना है तो अब आप जाके यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दें, इसके ऊपर क्या कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारे का सारा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जरा दोबारा एलोबरेट करते हैं। मैं कंट्रोल Z करूंगा, सारा वापस करूंगा, जितना भी हुआ उस सारे को वापस किया। ये तो मैं क्या करता हूँ, जैसे भी फर्ज करें मैंने ये पहला है, पहले के बाद नमाज रोजा और हज ज़कात ये करना है, तो मैं क्या करूंगा, एंटर पहला, उसके बाद जी टैब सब बुलेट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 1.1, 1.2, 1.3। तो अब मैं इसको करूँ, ठीक है, इसको करूँ बैक स्पेस करके, इसको बैक स्पेस करके, इसको ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अच्छा मैम कैसी हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद 1.1, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ ये यहाँ पे। अब अगर मैं कहता हूँ कि 1.1 के अंदर आपने हेडिंग बनानी है, तो मैं फिर दोबारा टैब प्रेस करता हूँ, आप जरा टैब ये 1.1, 1.1, इसके आगे कितना है, तो मैं कहता हूँ जी फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। ठीक है, ये हमारी नमाज है। ठीक है, तो अब हम फर्ज करें कि जी हम क्या लिखते हैं, दोबारा रोजे पे आते हैं, टैब प्रेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये 1.2.1 ये हमने कर दिया। तो हम क्या लिखते हैं जी, रमज़ान। हमारे पास रोजे कितनी किस्म के आते हैं, ये नहीं, मेन तो है हमारे पास रमज़ान का रोज़ा, शवाल जी शवाल के जो 5 रोज़े हैं वो, उसके बाद जी एक हमारे पास आता है इसका ये रमज़ान से 15 दिन पहले क्या आती है, वो शब बारात, शब मराज, शब महराज का रोज़ा भी लोग रखते हैं, मुहर्रम के रोज़े भी कुछ लोग रखते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, चलें ये एक अलग मसला है, लेकिन बताने का मकसद हमारा यहाँ पे बुलेट है। ठीक है, सब बुलेट। अब अगर फ़र्ज़ करें जी कि हम हज के हमारे वो कोई हेडिंग्स बनती हैं, तो उनको हमने अगर लिखना है तो टैब प्रेस करें सिंपल, और ये आप प्रेस करते जाएं। ठीक है, इसी तरीके से ज़कात है, तो आप उसकी कोई हेडिंग बनती हैं तो आप क्या करें, टैब टैब प्रेस करके एंटर, एंटर और एंटर। अब फर्ज करें आपको हेडिंग से निकलना है, अब आप इतने स्टेप आगे जा चुके हैं, निकलना कैसे है, पहली दफ़ा एंटर, दूसरी दफ़ा एंटर और तीसरी दफ़ा एंटर, और बिल्कुल बाहर निकलना है तो फिर चौथी दफ़ा एंटर। यानी जब तक कंप्लीट बाहर नहीं निकल जाते आप एंटर प्रेस करते जाएं। यानी फर्ज करें आप हेडिंग के अंदर 5-7 हेडिंग सब हेडिंग ले गए हैं, ठीक है, 1.1, 1.1, 1.1 इस तरह से कर देते हैं, आप बहुत लंबा ले जाते हैं, आपने वापस करना तो एंटर से ही सिंपल आपने वापस आना। मैं फिर वापस आता हूँ, यहाँ पे गए, एंटर पहला, दूसरा 1.5, तीसरा मेन जो आपकी है बुलेट है वो, और चौथा, चौथे पे आप बाहर निकल गए। अब आप पैराग्राफ की सूरत में आ गए, अब आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, हेडिंग नहीं बना सकते। अगर आपको फिर दोबारा हेडिंग बनानी है, आप एक स्टेप वापस नीचे ऊपर चले जाएं और फिर एंटर प्रेस करें, फिर हेडिंग में आ जाएंगे, एंटर प्रेस करें आप सेकंड हेडिंग में आ जाएंगे, चौथे में करेंगे तो आप क्या करेंगे, चौथी दफ़ा प्रेस करेंगे तो आप मेन पे आ जाएंगे। इस तरीके से आपने क्या करने हैं, बुलेट लगाने। ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, बात समझ आई, ये वाला जो टॉपिक होता है ये डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है। ठीक है, इसको अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, पहले आपने इस पे ट्राई लेनी है, फिर आपने इस पे ट्राई लेनी है, और इसकी ट्राई लेने के लिए मैंने सिंपल आपको बता दे दिया कि टैब प्रेस कर देना बस। यानी कि ये है ना पाकिस्तान, इसको इसमें कन्वर्ट किया, तो जो आपकी दूसरी हेडिंग्स होंगी आपने उनको भी 1 2 3 4 5 6 में लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे आप सिर्फ टैब प्रेस कर दो। ये अब टैब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में
اس کے اندر کچھ اتنا خاص نہیں ہے، لیکن میں اس لیکچر کے اندر صرف یہ چیز پڑھاتا ہوں تاکہ بچے اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیں. کیوں؟ آفس کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی 5-10 منٹ کی توجہ اس ہمارے جتنا بھی ہماری جو مشکل ہے اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کو کیا کریں گے، صحیح طریقے سے اس کی پریکٹس کریں گے. پریکٹس کرنے کے بعد مجھے میسج میں بتائیے گا کہ سر جی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو اب جو ہے ساتھ ساتھ میں ایک آدھی اسائنمنٹ بھی آپ کے لیے اپلوڈ کرنی شروع کروں گا جی، اس کے لیے مجھے فارمیٹنگ کر کے دیں، مجھے ہیڈنگ بنا کے دیں یا اس طرح سے کر کے دیں. تو یہ آپ نے مجھے کیا کر کے دینا ہوگا، اس کی اسائنمنٹس بھی بنا کے دینی ہے. نیکسٹ میں انشاءاللہ کل آپ کو اسائنمنٹ دوں گا، پہلی اسائنمنٹ میں کل آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا لیکچر ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے یہ ہم نے ہائی لائٹ کرنا، یہ ٹیکسٹ کو کلر کرنا، یہ ہم نے کلیئر فارمیٹنگ پڑھی ہے، ہم نے فارمیٹ پینٹر پڑھا ہے، اور ہم نے بلٹ کے اندر جا کے ہم نے سمبل بلٹ پڑھا ہے اور نمبر بلٹ پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے لسٹ بنانے کا طریقہ کار جو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سیکھا ہے، یا اب بلٹس کے اندر سب بلٹ لگانے کا طریقہ کار سیکھا ہے. تو یہ آج کے ہمارے ٹاپک تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم.